اچھا سر میں پراجا صاحب کا بڑا احترام کرتی ہوں. انہوں نے واقعی لیجسلیشن میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا مشرف کے زمانے میں. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ جو ایک چیز کو کہتے ہیں نا این جی او کلچر, مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو بہت بڑی بڑی این جی اوز کام کر رہی ہیں, جو باہر سے فنڈنگ بھی لے کر آ رہی ہیں, ان کا ایک کا نام تو ہے جماعت الدعوہ, ٹھیک ہے, اور اس طرح کی اور بہت ساری این جی اوز ہیں. تو وہ تو خواتین کے حقوق پر نہیں کھڑی ہو رہی. خواتین کے حقوق پر کھڑے ہو رہے ہیں تو ہم غریب لوگ کھڑے ہو رہے ہیں جن کا کسی این جی او سے تعلق نہیں ہے. نہ تو ان کی کوئی این جی او ہے نہ میری کوئی این جی او ہے. تو کورٹ نے تو ملک اسحاق کو بھی بیل آؤٹ کیا تھا جی. کورٹ کے پاس تو کورٹ دیکھیں جی, میں آپ کو بتاؤں کہ میں بہت بدقسمتی کے ساتھ یہ, اور مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے کورٹس کے لیے فرزانہ ہمارے ساتھ تھیں, اسٹرگل کی تھی, ہم لوگ جیلوں میں گئے ہیں, مارے کھائی ہیں, ہمیں بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا اسی کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ. تو ہم لیکن اس کے باوجود آج تک آپ کی عدالتیں, چاہے وہ لوور کورٹس ہوں چاہے وہ اپر کورٹس ہوں, ہائر کورٹس ہوں, وہ اس قابل نہیں ہوئی ہیں کہ وہ قرار واقعی سزا دے سکیں اس قسم کے مجرموں کو. وہ تو ایویڈنس پہ جاتی ہیں نا, ایویڈنس پہ جاتی ہیں. ابھی دیکھیں پروسیکیوشن کس کا کام ہے, پروسیکیوشن جو ہے وہ ایک مضبوط ہو. اب 100 لوگوں نے ایک واقعے کو دیکھا, مگر اس کے بعد بھی وہ ثابت نہیں ہو پایا. یہ ماروی سامنے آیا نا کہ این جی اوز نے جو ہے وہ ایک طرح سے, جو پراچا صاحب کا کہنا ہے کہ این جی اوز نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی, اور مشرف نے اس کا بیان بھی دیا اس طرح کا. بھئی سامنے لے کے آئے نا, نام لے کر آئیں کس این جی او نے اس کا کیا فائدہ اٹھایا, کتنے پیسے کمائے. میں اور فرزانہ ساتھ ہیں آپ کے, نہیں ہم دونوں کا تو کسی این جی او سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہمیں کسی این جی او سے کوئی تنخواہ ملتی ہے, نہ ہمارا کسی این جی او کے ساتھ کوئی مفاد وابستہ ہے. دیکھیں نا جی, یہ بات کہ کچھ واقعات ہوتے ہیں جاہل لوگوں کے, غلط لوگوں کے, ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. امریکہ کے اندر جو ہے, اور یہ اٹلی کے اور دیگر یہ اعداد و شمار موجود ہے, میں پہلے دے چکا ہوں, ہر 7 منٹ کے بعد ایک عورت پٹتی ہے, اور وہاں پر جو عورتوں کا قتل ہوتا ہے, جو عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے, اس کا بہت زیادہ اعداد و شمار ہم سے بہت آگے ہیں. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان 18 کروڑ کی آبادی ہے, 9 کروڑ عورتیں ہیں, یہاں پر جو ہے وہ کروڑوں کی تعداد میں گھرانے ہیں, ان میں سے سارے ہر جگہ پر عورت ماں ہے تو بے پناہ عزت ہے اس کی. یہ ہمارا پاکستانی معاشرہ ہے. عورت بہن ہے, عورت میں اب مجھے موقع دیجئے, عورت بہن ہے, اس کی بے پناہ عزت ہے. گھر آباد ہیں, گھروں کے اندر عورتیں بڑی عزت اور احترام سے رہ رہی ہیں. اب اگر 5%, 1% ہے, 1% سے بھی کم ہے, آسمان یہ کہاں سے آ گیا یہ اعداد و شمار؟ یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ پاکستان کو بدنام کرنے کا ایک طریقہ ہے. دیکھیں نا, ہم اسمبلی میں سوال دیتے ہیں, وہ ایک اتھینٹک چیز ہے. یہ اسمبلی کے سوال کا کوئی حوالہ دیں کہ جناب وہاں پر یہ سوال کیا گیا, اس کے جواب کے اندر یہ اعداد و شمار دیے گئے. یہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے دفتر میں بیٹھ کر, مطلب پرائز صاحب آپ ٹوٹل ڈینائی کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو 50% آبادی عورتوں کی ہے ان کے اوپر 5% بھی ظلم نہیں ہوتا. بہت کم ہے, بہت کم ہے. الحمدللہ یہ معاشرہ بڑا عورت کی عزت کرنے والا ہے. فرزانہ جلدی سے پھر مفتی صاحب سے بھی بات کروں. راجہ صاحب میری صرف آپ ایک یہ بات سنیں کہ اگر دیکھیں جہاں تک کہ تشدد کے وہ واقعات جس میں عورتوں کی جان جاتی ہے, ان کو قتل کیا جاتا ہے, ان پہ تیزاب پھینکا جاتا ہے, ان کی ٹانگیں توڑی جاتی ہیں, میں آپ سے اگری کرتی ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کی تعداد کچھ فیصد ہو, لیکن پاکستان کے ہر دوسرے گھر میں, یہ آپ کی اپنی منسٹری فار ویمنز ڈیولپمنٹ کی رپورٹ ہے کہ ہر دوسری عورت پاکستان میں کسی نہ کسی حوالے سے گھریلو تشدد کا شکار ہے. میں جو بات یہاں پہ کرنا چاہتی ہوں جو بڑی اہم ہے کہ جب تک ہمارا سماج اس بات کو نہیں ایکسیپٹ کرے گا کہ دیکھیں جو گھر میں ہر عورت جس کو گالی پڑتی ہے, ہر عورت جس کو ہیوملیٹ کیا جاتا ہے, مرد اس کو ہیوملیٹ کرتا ہے یا اس کو تھپڑ پڑتا ہے یا اس کے منہ پہ نیل پڑتا ہے, جس کو ہم وائلنس سمجھتے ہی نہیں ہیں, وہ تو میں کہتی ہوں آپ ہر گھر کی یہ کہانی ہے, اور یہ وائلنس ایک کنٹینیوم ہے. ہم صرف اس وائلنس کو دیکھتے ہیں. میں مفتی صاحب کو بھی اس سے پوچھوں. فرزانہ بالکل آپ کی بات درست ہے, اس پہ ان کا میں لیتی ہوں جواب, لیکن مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو کیس ہوا نوشکی بلوچستان میں, یہ آپ کو اس کے بارے میں علم ہوگا کہ سیل فون خواتین استعمال نہیں کر سکتی, اور یہ مئی کا ہے, یہ گزشتہ مہینے کا یہ واقعہ ہے کہ خواتین اگر سیل فون استعمال کریں گی تو ان کے چہروں پر تیزاب پھینک دیے جائیں گے. آپ کے علم میں ہے یہ بات, یہ واقعہ؟ واقعہ تو علم میں نہیں ہوگا, البتہ اگر اس پر کسی عالم کا فتویٰ آیا ہے تو وہ علم کی بنیاد پر نہیں, یہ فتویٰ ہے, بنیاد پر ہوگا, یہ فتویٰ ہی آیا ہے, اور قواعدی روایات سے متاثر ہوگا.
मैं इसकी मुकम्मल मजम्मत करता हूँ और खवातीन को वो मजम्मत करने से तो काम नहीं बनेगा ना मुफ्ती साहब, आप सब लोग मिलकर एक फतवा इनके खिलाफ क्यों नहीं देते? मुफ्ती साहब आप लोग इजाफी बात भी करता हूँ मुफ्ती साहब कि हमारे कल्चर की वजह से खवातीन बहुत पीछे रह गई हैं, तो इनको इजाफी वक्त देना चाहिए इल्म हासिल करने के लिए, मर्दों से ज्यादा इनकी तवज्जो करनी चाहिए। लेकिन आसमा इसको भी आप देखो ना कि समाज के अंदर हमारे यहाँ शूर नहीं है, आगही नहीं है, लोगों को इल्म हासिल नहीं होता, तो उससे कुछ चीजें तो खराब होती हैं। मैं ये समझता हूँ ना कि आप इसके अंदर हम एक दूसरे पर ब्लेम न लगाएं, सारा समाज उठे, रियासत उठे और खवातीन के शूर और आगही के लिए काम करें और बाकायदा एक एजेंडे के तौर पर 15 साल या 20 साल का कोई टाइम मुकर्रर करे, उसके बाद देखें कि कितना फायदा हो गया, फिर अगला हदफ करे। इस तरह संजीदा कदम उठा दिए जाए तो मुझे उम्मीद है कि हमारा माशरा जो जिसके अंदर जो कमजोरियां मौजूद है वो कमजोरियां खत्म हो जाएंगी। अच्छा, मैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, इस पे बात करूंगी कि जो माना कबायली रिवायात हैं वो मजहब का सहारा क्यों लिया जाता है वहां पे, और उनके वास्ते मजहब का सहारा क्यों लिया जाता है। क्या हमारे जो उलमाए दीन हैं इन लोगों के खिलाफ भी कोई फतवा दे सकते हैं? एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। समंदर में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है, तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ख़वातीन के हवाले से बढ़ते हुए जराइम और उनकी जो तज़हीक और तौहीन इस मुआशरे के अंदर हो रही है, उसको इस्लाम का लबादा क्यों? ये क्या साजिश है खुद इस्लाम के खिलाफ, या हम इस साजिश का कहीं ना कहीं खुद शिकार हो रहे हैं जानबूझ के? हमारे बहुत सारे हलके जो कि अपने ऊपर दीनी का लक़ब अपने साथ लगाते हैं। मैं बिल्कुल जल्दी से फरीद पराचा साहब आपकी तरफ ये आती हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जो जालिमाना कबायली रिवायात है इनको इस्लाम का नाम दिया जाता है और इसके कवर के अंदर जो है वो ये सारा कुछ किया जाता है और फतवे ऐसे दिए जाते हैं। देखिए, ये भी एक साजिश है कि इस्लाम का नाम इस्तेमाल करो ताकि उनकी तरफ तवज्जो न जाए। जिन लोगों ने बलोचिस्तान के अंदर औरत को जिंदा दफन कर दिया था, उन्होंने सियासत का सहारा लिया, उन्होंने बरसरे इक़्तिदार पार्टी का सहारा लिया। उनका एक आदमी जो है वो पीपल्स पार्टी का वजीर था और उसके बाद ये मामला जो है वो गोल हो गया और हमारी NGOs भी इस पर नहीं बोली। मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि वाकई औरत के बड़े मसाइल हैं, मर्द के भी हैं, लेकिन औरत के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। औरत का मसला यह है कि उसको जहेज के बगैर उसकी शादी नहीं होती। यहाँ पर गरीब घराने की बच्चियाँ 15-20 हज़ार के जहेज के लिए बैठी रहती हैं। यहाँ पैसे मांगे जाते हैं, कहा जाता है कितना सोना होगा तब करेंगे। यहाँ पर ये जो एक कल्चर है, दूसरी तरफ यही तो बात है कि इन सारी चीजों के खिलाफ आप लोग इकट्ठे होकर कोई एक फतवा ही दे दें। हम ही आवाज उठा रहे हैं, हमने इस पे कानून साजी भी की है। दूसरी तरफ भी एक औरत होती है जो ये मांग रही होती है जहेज, वो सास होती है, वो औरत ही होती है जो ये कहती है कि इस तरह से और इस तरह। फिर उसके बाद तलाक हो जाती है और मुतलका को, तलाक याफ्ता को यहाँ मुआशरे के अंदर कोई जगह नहीं मिलती, यहाँ खड़े खड़े तलाक दे दी जाती है। फिर इसी तरह से यहाँ जो हमारे जहालत के मामलात हैं, औरत के लिए तालीम गाहें नहीं है, उसके लिए ये वो सारी बातें, ये वो सारी बातें जो आप जैसे स्कॉलर कर सकते हैं, मैं ये मगर नहीं करते, ये इसके ऊपर इकट्ठे नहीं होते, इसके ऊपर आवाज नहीं बुलंद करते। आसमा, यही मैं बात करता हूँ कि ये वो मसाइल हैं कि जिन पे हम बात करते हैं, लेकिन जिन पर हमारी NGOs की खवातीन, मुकद्दस और मोहतरम खवातीन, उस पे बात नहीं करती। आप क्यों नहीं करती? मारवी की बात नहीं करती, आमना जंजुआ की बात नहीं करती। वो भी औरतें हैं ना जी, आमना मसूद जंजुआ, बिल्कुल वो कह रहे हैं कि आप भी एक खास सेक्शन के लोगों की बात करती हैं, लेकिन जो आम जैसे मिसिंग पर्सन्स का केस है, आमना मसूद का केस है, उनके साथ आप लोग नहीं खड़े हो। देखिए, मिसिंग पर्सन का जो केस है उसके ऊपर बड़ी क्लियर हमारी पोजीशन है कि अगर कोई आपका सस्पेक्ट
सस्पेक्ट है जिसको आपने गिरफ्तार करना है तो उसके किसी कानून के तहत होना चाहिए, और ये किसी भी हसास इदारे की या आर्मी की या उसका कोई हक नहीं है कि वो उठा कर ले जाएं और उनकी कोई ट्रायल नहीं हुई है और उसके बाद उनकी लाशें मिल रही हैं। दिस इज कंप्लीटली वी डू नॉट स्टैंड फॉर दिस, वी स्टैंड फॉर रूल ऑफ लॉ। अब दूसरी बात यह है कि ये वो चीज़ नहीं है कि जो आमना मसूद जुंजुआ एज अ वुमन जो है उनके ऊपर वो किया गया है। ये एक बहुत बड़ा इशू है मिसिंग पर्सन्स का, कि जो जिसमें घर के बेटे भाई जो है उनको उठाया गया है, और उसमें तो बहुत सारी खवातीन फैमिलीज जो है वो उसकी मुतासिर है। क्या ये दुरुस्त नहीं, और ये बहुत सारी एनजीओज इस्तेमाल भी करती है इस तरह के मामलात को, ये दुरुस्त नहीं? अच्छा, अब आमना मसूद जुंजुआ का इशू किसने इस्तेमाल किया? आप खुद देख लीजिए ना, किसने इस्तेमाल किया? ये वही लोग हैं जो हम पर इल्जाम लगाते हैं। इस्तेमाल का लफ्ज़ कहां से आ गया? इशू किसने इस्तेमाल किया? किसी की हिमायत करे तो इस्तेमाल का लफ्ज़ हो गया। बिल्कुल एग्जैक्टली यही मैं कह रही हूँ फराजा साहब, अगर किसी की हिमायत करें तो उसको इस्तेमाल करना नहीं कहा जाता। अगर मुख्तारा माई की हिमायत करें तो उसको ये नहीं कहना चाहिए कि अदालती मामला है ना जी। अदालत भी अगर फैसला दे चुकी है, आप फिर भी नहीं मान रही। नहीं जी, मलिक इसहाक के बारे में भी अदालत ने फैसला दिया है। कौन मानेगा कि वो मुजरिम नहीं है? मलिक इसहाक भी अदालत ने किया है ना। देखिए फराजा साहब, मुख्तारा माई के बारे में ये फैसला तो उन्होंने कहा कि हाँ उसका रेप हुआ था। अदालत ने ये कहा कि उसका गैंग रेप नहीं हुआ, जिसपे हमारा ये कंसर्न है कि जिस किस्म की ये आप गलत है, ये आप हम लोग उस केस को फॉलो कर रहे थे। डॉक्टर फरजाना बारी तो उस दिन फराजा साहब मैं भी क्या बात कर रहे हैं आप? हम लोग तो बहुत क्लोजली उस केस को फॉलो कर रहे थे। किया है वहाँ तो ये बंदे को तो उम्र कैद हो गई ना उनके केस में। जिस बंदे को उम्र कैद हुई है उसे क्यों हुई है फराजा साहब? अगर उसका रेप नहीं हुआ तो क्यों उम्र कैद हुई है? झूठ बोला तो उसको फिर एक बंदे को उम्र कैद क्यों? देखे वहाँ तो ये मामला था कि क्या शादी हुई है या रेप हुआ है, ये मौजूद बहस था। और ये था कि क्या ये जबानी इकरार के साथ शादी हुई थी। असल ये चीज अदालत ने ये तो साबित किया फिर आपने केस को फॉलो नहीं किया। चले ये आज ये मौजूद है, बहस नहीं है, लेकिन ये कह ही देती है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, हम उसको सीरियसली क्यों नहीं लेते, हम उसका मजाक क्यों उड़ाते हैं? एक औरत अपने बारे में इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती है, मुझे बताइए? उस इल्जाम को इन्वेस्टिगेट करने की बजाय बहुत सारी कुव्वतें आ जाती हैं उसको गलत साबित करने के लिए। बहुत जगह जब वो अंधी लड़की को उसने सजा दे दी थी, उसी के ऊपर रेप हुआ, उसी को कोड़ों की सजा दे दी, ये लोग उसके साथ बैठे हुए थे। तो ये किस मुंह से आएंगे? बात किया इन्होंने तो जिना और जिना बिल जबर के दरमियान जब हम लोगों ने कहा था इसको तफरीक कीजिए, एक जुर्म, दोनों जुर्म है और दोनों की नौयत अलग है, तो तब भी ये लोग हमारे खिलाफ थे कि ये इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एनजीओज हैं। अगर तो आपने इसी पे बहस करनी है, हमने कहीं ये नहीं कहा कि जनाब बिल जबर जो है वो उसमें कोई एविडेंस की जरूरत नहीं होती या फलां होने चाहिए। बिल्कुल वाज़े, यानी जो मजलूम है मजलूमा है, उसका अपना बयान। 22 साल का हदूद ऑर्डिनेंस को आप हदूद ऑर्डिनेंस है, हदूद ऑर्डिनेंस के बाद जो आपने तरमीमें करवाई थी, अब औरत कितनी महफूज हो गई है। हम तो औरत को महफूज करना चाहते थे, हम तो औरत को महफूज करना चाहते थे। मैंने सारी जेलें विजिट की। अब यकीन करें कि जेलों में औरतें अब मौजूद ही नहीं है इतनी कोई, क्योंकि पहले तो वो भरी हुई थी जेलें और हदूद के केसेस में भरी होती थी। जिस दिन ये विमेन प्रोटेक्शन बिल पास हुआ था और इन्होंने डाइल्यूट किया था हदूद ऑर्डिनेंसेस को, उस दिन मैं मौजूद थी हाउस के अंदर, और मुझे मालूम है कि किस तरीके से इन्होंने ये एमएमए, पूरी एमएमए थी, उसमें सिर्फ जमात इस्लामी नहीं थी, पूरी एमएमए ने इस कदर नारे और इस कदर गलीज इशारे और सब कुछ किया था कि जी आज शायद हम लोगों ने इस्लाम को खुदा ना खास्ता इस असेंबली से बाहर निकाल दिया है। ये एक इंतहाई, और उसमें क्या किया था आप मुझे बताइए? क्या उसके बाद इस्लाम खुदा ना खास्ता उसको कोई नुकसान पहुंच गया? लेकिन ये एक ऐसा क्रिएट कर देते हैं मजहब का और हकूक के लिए लड़ने वालों का। ये ऐसी बात नहीं है। आप कोहिस्तान का इशू ले लीजिए, इसमें भी मेरा नहीं ख्याल कि ये एक कोई मजहब का मसला था, उन्होंने इस्तेमाल किया मजहब को, और ये दो कबाइल की लड़ाई है, आजाद खेल कबाइल और साले खेल कबीला। अब इसमें भी आप ये देखिए, आज भी बयान छपा हुआ है साले खेल कबीले का कि हमने तो अपने जो लड़के हैं उनको सामने ले आए हैं, अब ये अपनी लड़कियां सामने लेकर आए। वहां जिरगा हुआ है, अब यहाँ पर उठाकर आप ले जाएं कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों को जिनको वहाँ की पॉलिटिकल नहीं पता उस कॉन्टेक्स्ट का, तो इसका मतलब ये नहीं। और दूसरा, इन लोगों ने भी बहुत वाज़ेह तरीके से कहा है, अच्छा मैं एक लड़की से मिले, इन्होंने ये बाकी पर नहीं देखा, किसी को नहीं देखा है किसी के पास कि वो जिंदा है कि नहीं।